हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एलिवेट लैब्स में। आज हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं लीड कोड ब्लाइंड 75 सीरीज में। लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। गिवन ए स्ट्रिंग एस, रिटर्न द लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग इन एस। ओके, क्वेश्चन इज सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन कि एक स्ट्रिंग दी हुई है, सबसे बड़ी पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। एग्जाम्पल इज वन BABAD। इसका आउटपुट है BAB। दिस स्ट्रिंग जो यहाँ पे है इसकी सबसे लंबी लेंथ की पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है, 3 लेंथ से ज़्यादा की बड़ी नहीं है। AB is also valid answer। इसके अंदर 3 लेंथ की एक और सब स्ट्रिंग है ABA। दिस कैन ऑल्सो बी अ वैलिड आंसर। इफ यू लुक एट एग्जाम्पल 2 CBBD, इसका जो आउटपुट आ रहा है BB। ये 2 लेंथ की सबसे बड़ी पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हो गए। फर्स्ट यू टू फिगर आउट कि व्हाट इज अ पैलिंड्रोम, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो पैलिंड्रोमिक सिंपल इज कि इफ इट रीड्स द सेम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो यहाँ पे एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा BAB। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो भी इट विल रिमेन BAB। दिस इज द सिंपल गेम दैट वी यूज टू प्ले इन चाइल्डहुड कि उल्टा सीधा एक समान वाला कोई सेंटेंस बताओ, वही पैलिंड्रोम है ये। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। लेट्स थिंक अबाउट कि हाउ कैन वी सॉल्व दिस। Okay, so what is a palindrome first? It reads the same backward and forward. If you look at this string, अगर मैं इसको reverse कर दूँ, A, then B, then A, so it will be the same ABA. If it is a palindrome, cat, so it will be T. It is A is C. So cat and tag do not read the same, so this is not a palindrome. So फर्स्ट डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन कम्स कि यार आप पैलिंड्रोम कैसे आइडेंटिफाई करोगे एंड व्हाट इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू आइडेंटिफाई अ पैलिंड्रोम। इफ आई एम गिवन दिस स्ट्रिंग ABA, how can I identify it's a palindrome or not? I can start with check this and compare it with start from left and right. This is a standard approach to finding palindrome number. If a string is palindrome or not, just start with the left and right. These matches, left and right match, we increment the left and decrement the right and keep on doing it until it's matching. And if it doesn't match anywhere, it means that the string is not palindrome. Okay, so this approach is of an approach where you take a left and right pointer and check if it is palindrome or not. So for example, in this string BABD, if we have to find the longest palindromic string, so what you can do, the brute force approach can be that we can check in O of n if a string is palindrome or not, and how many, if you brute force approach, what is the brute force approach is कि अपन सारी सब स्ट्रिंग्स लेंगे, अगर n लेंथ है तो उसकी n स्क्वायर सब स्ट्रिंग होगी, ठीक है। तो n स्क्वायर सब स्ट्रिंग में हम O of n से चेक करेंगे क्या पैलिंड्रोम है, इज इट अ पैलिंड्रोम और नॉट। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा ब्रूट फोर्स का O of n क्यूब होगा। तो दिस इज सिंपल कि आपके पास n स्क्वायर सब स्ट्रिंग्स है। If a string is of length n square substrings होगी। Now what you can do is now thinking about this कि इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। So this question is a very famous question, जिसको आपने हो सकता है कहीं ना कहीं DP से सोल्व किया होगा, but the approach that we are going to discuss here is a non-DP approach and how we are going to do that. So let's take this simple string BAD. Okay, so how do we check palindrome? So if you look at this string BAB, okay, we can start as you described, take a left pointer, take a right pointer, then do L plus plus and R minus minus if character at L is equal to character at right. और जहाँ पे भी मैच करना बंद हो गया, you break it and it is not a palindrome. Now there can be another way to check a palindrome if not. So what is it? It can be like if you take the middle of it. Let's take the middle of it, BAP. If I take the middle of it, so single length. So one thing to consider here, जो single length है, एक single character is always a palindrome. If I take string A, if I take a string B, this is also a palindrome, this is also a palindrome. Okay, so this is clear. So the idea that we are trying to introduce here is कि यार अपन palindrome को अलग तरीके से देखते हैं कि अपन बीच में गए, यहाँ पे अपन ने लेफ्ट और राइट इनिशियलाइज किया और फिर यहाँ से अपन एक्सपेंड करना राइट में कि L प्लस प्लस किया, L माइनस माइनस किया, R प्लस प्लस किया कि ये तो सेम है, ये इसका एडजेसेंट और इसका एडजेसेंट अगर सेम है B एंड B, दिस इज अ पैलिंड्रोम। आगे और स्ट्रिंग है तो आगे भी जाएंगे, जैसे एक्सपेंड करते जाएंगे।
तो अपन बीच वाले एलिमेंट से चेक करेंगे कि स्ट्रिंग्स पैलिंड्रोम है या नहीं है। बीच का एलिमेंट पकड़ा, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो यहाँ पे अगर अपन सोचे अपने पास n लेंथ की स्ट्रिंग है, तो अपन को हर एक से चेक करना पड़ेगा मिडिल लेके, और हर एक मिडिल के लिए इफ आई गो कि लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम कौन सा है, कितनी लेंथ पैलिंड्रोम है, ये इसको चेक करने मुझे लगेगा ऑफ n। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे गया, फिर यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, इन अ सिंगल इटरेशन। तो ऑफ n इंटू कितनी लेंथ है अपनी, ऑफ n, तो दिस कम्स टू ऑफ n स्क्वायर। नाउ द यहाँ पे एक अलग सा एज केस बनता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बी ए भी 3 लेंथ की स्ट्रिंग है विच इज ओ। अगर यहाँ पे ही इवन लेंथ होता तो व्हाट वी कैन डू, फॉर एग्जाम्पल बी ए बी, तो यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। जो अगर आई लेते हैं तो आई प्लस 1 पे लेना पड़ेगा लेफ्ट एंड राइट, देन यू हैव टू चेक कि ये दोनों सेम है, तो आप लेफ्ट एंड राइट में एक्सपेंड करो। तो यहाँ पे वी हैव टू कंसिडर 2 केसेस व्हेन वी आर चेकिंग मिडिल। चेक फ्रॉम middle, then you have to consider 2 approach for odd length and even length. The approach is same. Odd में your left and right will be equal, and even में your left and right will not be equal. This will be the same. यहाँ पे adjacent होंगे, R will be L plus 1. यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये इनिशियलाइजेशन का ही डिफरेंस होगा, और उसके बाद आप लेफ्ट एंड राइट में एक्सपेंड करते जाओ, चेक इफ इट इज अ पैलिंड्रोम और नॉट, और अगर पैलिंड्रोम है तो यू कैन इंक्रीज द मैक्स लेंथ ऑफ इट। सो दिस इज द आइडिया दैट हाउ वी इम्प्रोवाइज्ड आवर ब्रूट फोर्स टू फ्रॉम ऑफ n क्यूब to optimize solution of n square without using an extra space, without a dp solution. This question can also be solved with dp, but here we are going to solve it without dp. So let's start code करना start करते हैं. Okay, let's start. And n is equal to आपका length. Okay, string की length निकाल ली अपन ने, और what we need max length, max, and the max will always be 1. So minimum जो आपकी लेंथ होगी will be 1, बिकॉज की सिंगल लेंथ की लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम, कोई भी स्ट्रिंग हो, अगर कोई भी कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा तो भी सिंगल कैरेक्टर इज ऑलवेज ए पैलिंड्रोम. ओके, वी नीड टू रिटर्न द स्ट्रिंग. वी डोंट, हमें यहाँ पे केवल मैक्सिमम लेंथ रिटर्न नहीं करनी, हमें यहाँ पे सब स्ट्रिंग रिटर्न करनी. तो हमें इसके स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंटर चाहिए होंगे. लेट्स स्टार्ट विथ 0 एंड विल ऑल्सो भी 0. तो अगर जो अपन ने बेस केस लिया, अगर मैक्सिमम आपका 1 ही है, कोई भी पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग है ही नहीं एक लेंथ से ज़्यादा बड़ी, तो यू कैन रिटर्न द फर्स्ट कैरेक्टर. ओके, नाउ स्टार्ट द होल लूप. First we'll check for the so we'll start with left and right, L comma R. Okay, we start also then with 0. Just initializing them. Okay, so for odd length, let's see, so what we'll do, L is equal to I and R also equal to I. And now we will check if Y will do L is greater than equal to 0 and right is less than n, and if character at and left is equal to character at right, अगर इसके बराबर है ओके, तो वी हैव टू एक्सपांड दिस कंटिन्यूसली जब तक ये चलता रहेगा. एंड विल चेक फॉर द मैक्स लेंथ. तो व्हाट इज द लेंथ विल बी हियर, लेंथ होगी आपकी राइट माइनस लेंथ प्लस 1, मैक्स is less than right minus left plus 1 अगर है तो what it will be, max will be right minus left plus 1, simple enough. and what we'll do, हम start और end को अपडेट कर देंगे.
our start will be this left and our end will be this right. Cool. So this is for your even approach, odd approach, and यहाँ पे अपन को ये करना पड़ेगा, एक्सपेंड कर रहे हैं L माइनस माइनस, एक्सपेंड कर रहे हैं राइट में L प्लस प्लस. So this is for odd, and for even this is exactly same. We'll just do r is equal to plus 1. Now when this is done, so we have this start and end. It will be stored. जो अपना सब स्ट्रिंग होंगी सबसे बड़ी लेंथ की, उसका स्टार्ट और एंड यहाँ पे स्टोर होंगे. So you have to return the substring. Java के अंदर substring फंक्शन होता है. It does not include the ending index, so we'll have to do end plus 1 start comma end plus 1. Okay, let's run it. Okay, mistake. Cool. 2 test cases passed. Let's submit this. This is a working solution, 20 milliseconds. Cool. So this was the solution for this. This is a good approach. This is of n square approach. This can be solved with DP. It can be even faster. People have submitted faster solution than this, but there are some optimization. Here we were looking to, the main takeout of this question was to consider it without having a DP approach. And वो अपन कैसे करेंगे? We did a subtle change in how we are checking for the palindrome. अपने बीच से स्टार्ट किया, देन एक्सपांड करते गए. उससे ही सिंपल अपने ब्रूट फोर्स अप्रोच को ऑफ एन स्क्वायर, ऑफ एन क्यूब से ऑफ एन स्क्वायर में लेके आए. थैंक यू. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस कंटेंट.